Okay, is the screen is visible to everyone? Yes, sir. Okay. Okay. So today I will start the lecture number 3 of day 3. And in this lecture, in previous lecture, we have studied about what do you mean by digital signal processing, how we are using digital signal processing, what are the advantages or disadvantages of digital signal processing, and where to use the digital signal processing. Now today we will discuss about how to represent digital signal processing, the signal in digital signal processing. So as per previous class, you all know digital signal processing will be processed from analog signal. Okay, analog signal, and that analog signal first discretized, then digitized. So before going to represent the signal in digital signal processing, we have to know how to represent. Okay, so represent the discrete signal. We will study in this lecture the representation of discrete time signal. So the name of the topic will be representation of discrete time signal. This has been already discussed in your previous semester in signal and system, but again, since it is under your course curriculum, so again I will discuss it. Okay, so to represent, we have to represent a signal in the form of some waveform, in the form of some digits, in the form of some numerical values, or in the form of some functions. These are the representation. So depending upon this representation, depending upon this representation, your digital signal representation, digital discrete signal can be represented into four categories. Like first one is, just a minute. First one is the very first one is graphical representation. That is graphical representation. Second one is functional representation. Functional representation. Third one is tabular representation. Tabular representation. And last but not the least is sequence representation. Sequence representation. Okay. So in this case, we have already studied about graphical representation, functional representation, tabular representation, and sequence representation in our previous semester. But that representation was for both continuous time signal as well as discrete time signal. Now, today we will discuss about only for discrete time signal. So, it will give you a quick revision, okay, from the previous semester. So, our first topic is, move to the very first topic is, that is graphical representation.
graphical representation. Okay, so in graphical representation, we have to represent the signal in the form of graph. Okay, we have to represent in the form of graph. So first point in graphical representation is it will be represented in the form of graph. Graph will be there. Okay. Second one is, since through this graph we will represent the discrete signal, the signal must be discrete. Okay, these are the main 2 points whenever we are going to represent a discrete time signal through graphical representation. So, how we will represent a signal through graphical representation, or how we, through graph we can represent the signal, we will see. Suppose there is a signal like x of 0 equal to -1, x of 1 equal to 2. Sorry, -1 लिख लेते हैं. X of 0 equal to 1, x of 1 equal to 2, x of -1 equal to 3, x of -2 equal to 4. Now we have to represent this signal in the terms of graphical representation. So first, for graphical representation, we have to create a graph. That is, this is a number function. All the data is given in the form of numbers. So in discrete time domain, I have to write n instead of t. And here I am taking an origin. Like this is the origin. Okay, that is 0. 0, 1, 2, 3, 4, and left side of the 0, that is -1, -2, -3, -4. So the graph has been already plotted. Now according to this graph, we will put the value. So x of 0 equal to, that is 1. Suppose this is the 1. So 0 equal to 1. Okay, sorry, x of 0. X of 0 equal to, here it is 1. Okay, now x of 1 equal to 2. That is x of 1 equal to 2. X of -1 equal to 3. So x of -1 equal to 3. Okay, x of -2 equal to 4. So x of -2 equal to, suppose this is 4. Okay, so that is graphical representation. So in that case, without seeing the equation, without seeing this equation, ओके, ओनली थ्रू दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ मेरे पास है अभी, ये ग्राफ को देख के हम लोग समझ सकते हैं सिग्नल क्या है. थ्रू दिस सिग्नल, लाइक दिस, सपोज अनदर सिग्नल, यहाँ पे तुम्हारा 0 एक्सिस है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 1. सो सिर्फ ये ग्राफ, मुझे 0 पता है, ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन के लेफ्ट राइट साइड 1 2, एंड दिस इज -1 -2 -3. सो मुझे सिर्फ ओरिजिन देख के ही पता चल जाएगा, ग्राफ देख के ही पता चल जाएगा मेरा सीक्वेंस क्या है या सिग्नल क्या है. सो ऑल दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी डन थ्रू ग्राफ. Graph is
a very vital role to represent this signal. So this kind of representation is known as graphical representation. Okay, next one is functional representation. Next one is functional representation. So point number 2, that is functional representation. Point number 2, functional representation. Okay, functional representation. So functional representation means all the sequence or all the data will be represented through functions. In the previous equation you will see that this one, ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3 इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2 इक्वल टू 4, ये हो गया तुम्हारा फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन. सो उसके लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ करूं. ठीक है, पूरा ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. सिंपली दिस फंक्शन, थ्रू दिस फंक्शन में ये सिर्फ फंक्शन देख के ही पता चल जाएगा मुझे कि सिग्नल क्या है. So functional representation and graphical representation both are interdependent. Without function or without the help of the function, you can't draw the graph. Similarly, whenever you are going to represent any kind of discrete time signal from the graph, you have to take the help of functions. So, functional representation and graphical representation are both the important one as well as both the interconnected representation technique. बिकॉज एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. फंक्शनल के लिए फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ आएगा, तुम ग्राफ से भी फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन ला सकते हो और फंक्शन से ग्राफ रिप्रेजेंटेशन तुम दे सकते हो. सो दीज आर द इंटरकनेक्टेड. ओके, सो थर्ड वन इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. थर्ड वन इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. सर. हाँ बोलो. सर फंक्शनल फिर से रिपीट कर सकते हैं सर, आपका आवाज बहुत कट रहा था. ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. ठीक है, सो देखो, अभी तक हम लोग जितना भी डीएसपी के बारे में पढ़े हैं या सिग्नल सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, हम लोग का मेन मोटो क्या है, रिप्रेजेंट करना किसी भी चीज को. जैसे तुम जब बीटेक का डिग्री ले रहे हो, ठीक है, विदाउट रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर अप टू 8 सेमेस्टर, आई कांट से यू कैन पास द बीटेक कोर्स. सो हर एक चीज के लिए मुझे रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है. So digital signal processing is nothing but it is a operation on signal. Signal कहाँ आता है, एनालॉग सिग्नल को पहले हम डिस्क्रिटाइज करते हैं, डिस्क्रिटाइज को हम पहले फिर डिजिटाइज करते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं, तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होता है. सो नाउ टू रिप्रेजेंट द सिग्नल इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इसका मेन. सर आपका वॉइस बहुत कट रहा. हेलो. हाँ, सभी का सेम प्रॉब्लम है, सभी के साथ सेम प्रॉब्लम है सर. हाँ. हेलो, सभी के साथ सेम प्रॉब्लम है. All the students has a common issue, that is voice is breaking. यस सर, आपका सर वॉइस बहुत कट रहा है, सर को समझ. एक मिनट रुको, मैं रिजॉइन हो रहा हूँ. ठीक है, ओके, मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ. ठीक है,
डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो होता है, पहले हम सिग्नल को डिस्क्रिटाइज करते हैं फिर डिजिटलाइज करते हैं। डिजिटाइज करने से पहले उसको डिस्क्रिटाइज करते हैं, तो मुझे जानना जरूरी है कि हम डिस्क्रीट सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस सेमेस्टर। फिर भी मैं तुम लोगों को और एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर क्विक रिविजन। So that is there are 4 kind of representation of discrete time signal, that is graphical representation, functional representation, tabular representation, as well as sequence representation. ओके, सो इन चारों में से इंटर रिलेटेड है तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। जरूरी नहीं है कि तुम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे रिप्रेजेंट करो, बट दीज थ्री, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन, you have to represent the signal every time. In every instant cases you have to represent the signal in these 3 kind of representation. So move to the very first kind of representation, that is graphical representation. So in graphical representation, since the term graph is there, okay, so in that case graph is taking a very vital role. So the signal is represented by the help of graph. And second thing, since you have to represent the discrete time signal, so in graphical representation, in this case, the signal must be discrete. ये नहीं कि हर एक जगह पे ग्राफिकल रिप्रेजेंट मतलब ही डिस्क्रीट, ये नहीं है। तुम यहाँ पे डीएसपी पढ़ रहे हो, डिजिटल डिस्क्रीट सिग्नल से पढ़ रहे हो, सो दैट्स व्हाई इन दैट केस द सिग्नल मस्ट बी डिस्क्रीट। ठीक है, सो डिस्क्रीट सिग्नल ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जस्ट लुक एट दिस ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, ठीक है। ये ग्राफ में क्या हो रहा है, मेरा जो सिग्नल है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द, इस ग्राफ में मेरा जो सिग्नल है वो डायरेक्ट तुम्हारा यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2 इक्वल टू 4, इसमें मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये सिंपली ये सीक्वेंस देख के मैं अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो इन सेकेंड केस सिर्फ सिंपली ये ग्राफ देख के तुम ये सिग्नल को पता लगा सकते हो ये सिग्नल क्या है, इसका वैल्यू क्या है। सो दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Functional representation, when the signal will be represented in the function of a signal, like x of 0, that is x of 0 का वैल्यू क्या है 1, x of 1 2, x of -1 3, x of -2 that is 4. So that is the main relation between graphical representation and functional representation. From graphical representation, you can represent the signal into its corresponding functions, or as well as from functional representation, you can represent the signal into its corresponding graphical representation. So these are the interconnected. Next is tabular representation. तो tabular representation में क्या होगा, tabular representation में तुम्हारा एक टेबल दिया जाएगा, ठीक है, अ टेबल इज यूज्ड, टेबल इज यूज, टेबल में क्या होगा, एक में रहेगा तुम्हारा पोजीशन दैट इज एन, दूसरे में रहेगा उस पोजीशन में उसका वैल्यू एक्स ऑफ एन। सो यहां पे देखो, इसी फंक्शन को हम टेबुलर में देंगे तो एन का वैल्यू यहाँ पे 0 है, एन का वैल्यू यहाँ पे 1 है, एन का वैल्यू -1 है, एन का वैल्यू -2 है। सो एक्स ऑफ एन का वैल्यू क्या है 1 2 3 4। So this tabular representation can also be represented by functional representation as well as graphical representation, but in most of the cases tabular representation उतना जरूरी नहीं है, सिर्फ functional representation and graphical representation is very much important, ठीक है। So next is the last one is sequence representation, sequence रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर बीच में वॉइस कटता है तो मे बी नेटवर्क इश्यू है, डोंट वरी,
मैं जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बाद में तुम यूट्यूब में बैकअप ले सकते हो, ठीक है। नेटवर्क इश्यू है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। सो सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंस में ना ही मुझे टेबल का जरूरत है, ना ही मुझे फंक्शनल रिप्रेजेंट का जरूरत है, ना ही मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जरूरत है। इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, मैं सिर्फ x ऑफ n ले रहा हूं, एंड देन आई हैव टू पुट द वैल्यू दैट इज वन, सॉरी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज जीरो में इसका वैल्यू वन है, ठीक है, वन में टू, माइनस वन में थ्री, एंड माइनस टू में फोर, and you have to represent the origin by an arrow. So arrow means origin, ठीक है। ये मुझे याद रखना पड़ेगा इन केस ऑफ सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन, एरो मींस ओरिजिन। और कभी कभी देखोगे एरो नहीं देता है, एरो के बदले क्या देता है, 4 3 1 2, दैट इज एरो के बदले यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एरो के बदले यहाँ पे एक डैश दे दिया जाता है, सो डैश ऑल्सो रिप्रेजेंट द origin under the digits. So these are the different type of representation of your signal or discrete time signal. So all of the signals, all of the operation will be dependent and solved and represented on the basis of this representation. तुम कितना भी कोई भी इक्वेशन ले लो, कोई भी सोल्यूशन ले लो, कोई भी प्रोसेस ले लो, जो भी प्रोसेस तुम करोगे उसको तुमको कॉपी में दिखाना है, सॉल्व आउट करना है, या आउटपुट सीआरओ या डीएसओ में दिखाना है, या मैटलैब के यूजर इंटरफेस में दिखाना है। सो ये चारों के अलावा किसी और तकनीक की कोई और रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में तुम्हारा उपलब्धि नहीं है। So you have to represent the signal in this format only. Okay, so these four formats are very important. Next one is, next we will move to the next topic, that is, मैं तो अभी सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन मुझे पता चल गया, नाउ मैं क्या करूंगा, एलिमेंटरी, मुझे एलिमेंटरी डिस्क्रीट सिग्नल देखना है क्या क्या है, दैट इज एलिमेंटरी डिस्क्रीट time signal. Now I have to check or I have to know what are the elementary discrete time signal. So have you any idea about elementary term? ये elementary होता क्या है, कोई बता पाओगे? What do you mean by elementary? Elementary होता क्या है? Anyone? Anyone? एलिमेंटरी होता क्या है? एलिमेंटरी होता क्या है? Anyone from your end? What do you mean by सर element? हाँ बोलो। सर सर सिग्नल का एनालिसिस करना। एनालिसिस, नॉट एग्जैक्टली एनालिसिस, एलिमेंटरी मतलब तुम लोग अगर हम बोलेंगे कि बीटेक पढ़ने के लिए तुम लोग को एलिमेंटरी एक नॉलेज चाहिए, तो दैट मींस बेसिक एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट, एलिमेंटरी नॉलेज मतलब एकदम बेसिक, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, यह है एलिमेंटरी नॉलेज टू फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर टेकिंग एडमिशन इन बीटेक, that is the elementary. So elementary discrete time signal means these are the very basic discrete time signal upon which all other signal can be represented. जैसे हम लोगों को बचपन में क्या था ना, ये टू का टेबल्स, थ्री का टेबल्स, दीज आर द एलिमेंट्री, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को फर्दर कैलकुलेशन, एडिशन टेबल, सब्सट्रैक्शन टेबल, तो इसको डिपेंड बेस करके बाकी जो सिग्नल है उसको हम जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर द एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो इसके अंदर पहला, सबसे पहला जो आएगा दैट इज यूनिट स्टेप सीक्वेंस, यूनिट स्टेप सीक्वेंस, यह है वन ऑफ द
elementary signal. So tell me, what do you mean by unit step sequence or unit step signal? क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस सेमेस्टर में। यूनिट स्टेप सीक्वेंस और यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, जरूरी नहीं है तुम डिस्क्रीट टाइम स्केल में ही बताओ, उसको कंटिन्यूअस टाइम स्केल में भी बता सकते हो। यूनिट स्टेप सीक्वेंस और यूनिट स्टेप सिग्नल ये होता क्या है? एनीवन? यूनिट स्टेप सिग्नल और यूनिट स्टेप सीक्वेंस क्या होता है? एनीवन? सर जिसका एरिया 1 हो अंडर यूनिट स्टेप फंक्शन के। जिसका पहले तुम ये पोल का आंसर दे दो, उसके बाद मैं पूछूंगा एक एक करके, ठीक है? ओके, नो, ठीक है। दैट मीन्स तुम लोग प्रीवियस सेमेस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान से पढ़े थे, ठीक है? गुड, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, यूनिट स्टेप मतलब, यूनिट मतलब एक, ठीक है? एक स्टेप, स्टेप मतलब सीढ़ी, तो सिंपली एक स्टेप रहेगा। ये सिग्नल है, इसका एक स्टेप, ये कंटिन्यूअस होगा, दिस इज फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, और ये शुरू होगा जीरो से, ओनली पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है? डिस्क्रीट में क्या होगा? डिस्क्रीट में मैं उसको u से रिप्रेजेंट करूंगा, u ऑफ n इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर n लेस देन 0। सो इट विल लुक लाइक दिस, 0, 0 से इसका वैल्यू सब 1 होगा, ठीक है, अप टू n। एंड ये माइनस एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस है, सो नेगेटिव एक्सिस में इसका वैल्यू 0 होगा। सो दिस इज यूनिट स्टेप, सिर्फ एक ही स्टेप है, ठीक है? सो नेक्स्ट इज यूनिट स्टेप सीक्वेंस, नेक्स्ट इज यूनिट रैम्प सीक्वेंस, यूनिट रैम्प सीक्वेंस, रैम्प सीक्वेंस। सो यूनिट रैम्प क्या है? रैम्प देखे हो, ठीक है? कॉलेज में भी एक रैम्प है, सीढ़ी से डायरेक्ट ऐसा करके एक स्लाइडर ऊपर उठता है, दैट इज रैम्प। सो सिग्नल को अगर रैम्प में हम रिप्रेजेंट करेंगे, रैम्प टाइप डायग्राम उसका ग्राफ होगा, देन इट इज नोन एज रैम्प सीक्वेंस। एंड यूनिट मींस उसका वैल्यू जो है जीरो से एक स्टेप करके ऐड होगा, दैट इज एक में एक रहेगा, जीरो में जीरो रहेगा, टू में टू रहेगा, थ्री में थ्री रहेगा, फोर में फोर रहेगा। सो दैट इज यूनिट रैम्प सिग्नल। इसका रिप्रेजेंटेशन है R फॉर रैम्प एंड N, दिस इज डिस्क्रीट, सो R of n equal to n for n greater than equal to 0 and 0 for n less than 0, so it will look like this। यहाँ 0 है, 0 में 0, 1 2 3 4 and so on up to n, and in the left hand side of the zero origin, that will be negative axis, so it will be 0। So this is unit ramp signal,
ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट सैंपल सिग्नल। नेक्स्ट इज यूनिट सैंपल सिग्नल और सीक्वेंस, कुछ भी यूज करो, सीक्वेंस। ठीक है। सो यूनिट सैंपल सिग्नल मीन्स, तुम कंटिन्यूअस सिग्नल में पढ़े थे इम्पल्स सिग्नल, दैट इज ओनली जीरो में इसका वैल्यू रहेगा, बाकी किसी में इसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे भी सेम थिंग होगा। सो दिस इज रैम सिग्नल, सैंपल सिग्नल और यूनिट सैंपल सिग्नल। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा n इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 0 and 0 for n not equal to 0. So it will look like this. ये पॉजिटिव एक्सिस में n का वैल्यू जीरो ने जीरो के अलावा इसका वैल्यू जीरो होगा, नेगेटिव एक्सिस में भी इसका वैल्यू जीरो होगा। सो दिस इज यूनिट सैंपल सिग्नल। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल और सीक्वेंस, whatever you can use। ठीक है। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। सो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस हमको पता है कि कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंटिन्यूअस में क्या होता है, e टू द पावर n, ठीक है, और e टू द पावर सॉरी e टू द पावर t। यहाँ पे क्या होगा, सिंस दिस इज डिस्क्रीट वन, सो t विल बी रिप्लेस्ड बाय n, सो a टू द पावर n। ठीक है, फॉर ऑल n। ठीक है। सो ए टू द पावर जीरो में n का वैल्यू जीरो में 1 रहेगा, बाकी में सब अकॉर्डिंग टू ए टू द पावर 1, ए टू द पावर 2, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर -1, ए टू द पावर -2, सिंस दिस इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। सो हम लोग कंटिन्यूअस में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट लाइक अ कर्व, एक कर्व होगा। ठीक है, इधर भी एक कर्व होगा, इधर भी एक कर्व होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस value, the your signal will be represented। next one is sinusoidal signal। sinusoidal सीक्वेंस और सिग्नल। सीक्वेंस इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ये डिस्क्रीट है, ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज जाएगा। तो साइनसोइडल सिग्नल में क्या होगा, हम लोग कॉन्टिन्यूअस में क्या कर रहे थे, x ऑफ t इक्वल टू a cos ओमेगा t लिख रहे थे। सो t विल बी रिप्लेस बाय n, सो x ऑफ n इक्वल टू a cos ओमेगा n और a sin omega n, whatever it may be, so it will represented in this। so इसका डायग्राम कैसा होगा, साइनसोइडल वेव का डायग्राम कैसा था, कंटिन्यूअस में ऐसा था। ठीक है। सो डिस्क्रीट में कैसा होगा, पैटर्न सेम रहेगा, बट पर्टिकुलर पॉइंट हैज इट्स ओन वैल्यू, सो इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है। सो दिस इज योर एलिमेंटरी सिग्नल, एंड वन मोर सिग्नल इज कॉम्प्लेक्स सिग्नल or complex sequence। So complex sequence। so complex sequence में रिप्रेजेंटेशन x ऑफ t के बदले मेरा यहाँ पे x ऑफ n होगा, एंड कॉम्प्लेक्स है दैट मीन्स यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल होगा, एंड e का टर्म रहेगा e टू द पावर j ओमेगा n। दिस इज द कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सो दैट इज द complex sequence। so through this I can represent the entire sequence। okay, now next thing is how you have to represent in the user interface। so in case of DSP there is the interface called user interface called MATLAB। ठीक है। सो मैं अभी थोड़ा दिखा दे रहा हूँ मैटलैब को कैसे हम लोग, मैटलैब के थ्रू कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ टाइम, आई विल शो यू मैटलैब रिप्रेजेंटेशन।
मैटलैब रिप्रेजेंटेशन। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, जस्ट अ सेकंड। सो मैटलैब में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले n इक्वल टू 0 से मेरा एक लिमिट लेना पड़ेगा 1। ठीक है, और ये मैं मैटलैब का प्रोग्रामिंग में तुम लोगों को जब लैब कराऊंगा उस टाइम बता दूंगा, मैं सिर्फ तुम लोगों को भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सो x1 इक्वल टू साइन 2 इंटू पाई इंटू n n प्लॉट n कॉमा x1। देखो, इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, नाउ डिस्क्रिटाइज जब करेंगे उसको हम, तो इन लैब में दिखा दूंगा कैसे इसको डिस्क्रिटाइज करेंगे। ठीक है, वो तुम लोगों का एक लैब का एक्सपेरिमेंट है। तो जैसे ही तुम लोगों का फ्रेश रूटीन पब्लिश होगा, ठीक है, लैब का शेड्यूल तुम लोगों का हो जाएगा, देन आई विल शो यू। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या करेंगे, थ्रू एनी इंटरफेस। यहां पे हम लोग का इंटरफेस क्या है, मैटलैब है। सो थ्रू मैटलैब आई विल रिप्रेजेंट इट। सो दिस इज graphical representation। okay, and whatever I have given, that is this one, sorry, this one is the functional representation। यहाँ पे देखो फंक्शन दिया गया है एक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन आई विल get the display। so this is the functional representation। so graphical representation and functional representation are the interrelated। तुम कहीं पे भी उसको रिप्रेजेंट करने जाओ, you have to put the functions। ठीक है, सो दैट इज द सिंपल एग्जांपल। ठीक है, फ्रॉम अगर तुम लोगों का लैब चालू होता है, फ्रॉम दैट time I will discuss about MATLAB and how you will represent the discrete time signal as well as continuous time signal, convolution, ठीक है, signal operation using MATLAB you will, I will show you। ठीक है, so that is the representation। okay, so just now I'm switching to the topic। So this is the complex sequence, these are the sequences, that is the elementary sequence। तुम लोगों का जितना भी अभी तक अब से लेकर तुम लोग जितना भी डीएसपी पढ़ोगे, ठीक है, that sequences will be the part of this six type of sequences। that is unit step sequence, unit ramp sequence, unit sample sequence, exponential sequence, sinusoidal sequence and complex sequence। इसके बाहर कोई तुम लोग तुम्हारा डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तुमको नहीं मिलेगा। सो दीज आर द एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। अब तुम लोगों का नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा मेरा जो प्रीवियस सेमेस्टर का जो क्लास हुआ था, दैट इज एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल। ठीक है, एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल यू हैव टू
एक बार तुम देख के आना, दैट इज एनर्जी सिग्नल एंड सॉरी पावर सिग्नल, ये दोनों एक बार देख लेना फ्रॉम प्रीवियस क्लास, ठीक है, प्रीवियस सेमेस्टर क्लास। और मेरा यूट्यूब में अगर तुम लोग हो तो यूट्यूब में मेरा एक वीडियो है, हाउ टू फाइंड आउट एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल, उसको भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा सिग्नल का डिफरेंट एग्जांपल्स एज वेल एज ऑपरेशंस ऑन द सिग्नल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट्स रिगार्डिंग टुडे सेशन? हाँ, so any doubt from your end? Any doubts? Any doubts? Any doubts from today's session? I'm giving you 30 seconds. If you have any doubt, please click on yes. If you have no doubts, click on no. And after that, I will conclude the class. Have you any doubts? Am I audible? Am I audible? Okay, have you any doubts from today's session? If yes, then I will continue, otherwise, I will conclude the class. Have you any doubts? No, sir. ओके, सो आई कैन कंक्लूड द क्लास। ओके, टीचमेंट में ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा, अगर वहां पे कुछ गड़बड़ है तो मेरा एक बैकअप रखा हुआ है, स्क्रीन शेयर, आई विल अपलोड द वीडियोस, ओके, एंड शेयर द लिंक ऑन द व्हाट्सएप इनबॉक्स, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, आई एम गोइंग टू एंड द सेशन, थैंक यू। Thank you, sir.